Assalamualaikum. My name is Hadia Faruqi Saidul Zafar. I am working in JT Arts, Science and Commerce College for Women Malegaon. Today, in this video, we are discuss about indirect evidences of evolution. These are the key points. Evolution, indirect evidences of evolution, evidences from comparative anatomy, concept of comparative anatomy, connecting link and vestigial organs. Then first we see what is evolution. Evolution can be defined as evolution means the slow and gradual process by which living organisms have changed from the simplest unicellular form to the most complex multicellular form that are existing today. Then we see the indirect evidences of evolution. Indirect evidences are the circumstantial evidences and fact that do not really prove something but also do not support the incontrovertible evidence. Then next we see the evidences from comparative anatomy. Evidences from comparative anatomy are the indirect evidences of evolution. Comparative anatomy can be defined as it is a study of similarities and differences in the anatomy of different species. Comparative anatomy is closely related with the evolutionary biology and phylogeny. Comparative anatomy indicates that various organisms share a common ancestor, and comparative anatomy also involves the scientist in classifying organisms based on similar characteristics of their anatomical structure. Next, we see the concept of comparative anatomy. There are two major concepts of comparative anatomy which are as follows. First is the homologous structure. The structure or the body part or the anatomy which is similar in different species because the species have common descent. They may or may not perform the same function. For example, the four-limb structure shared by cats and whales. Homologous structures कैसे structures होते हैं? They are the structure which is similar in different species. अलग अलग स्पेसीज़ में अगर सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं बिकॉज द स्पेसीज हैव कॉमन डिसेंट मीन्स द दे शेयर कॉमन एंसेस्टर, इसीलिए इनके पास जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिमिलर हैं. दे मे और मे नॉट परफॉर्म द सेम फंक्शन. अगर हम इसमें समझते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर को कंपैरेटिव एनाटॉमी में तो फोर लिम्ब की एग्जांपल है ह्यूमन, कैट, व्हेल्स एंड बैट. ये चारों जो हैं ये अलग अलग स्पेसीज से रिलेटेड हैं लेकिन चारों के पास जो फोर लिम्ब का स्ट्रक्चर है ये सेम है. तो इसका मतलब क्या हुआ? बिकॉज द स्पेसीज हैव कॉमन डिसेंट और दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर. सेकंड, एनालॉगस स्ट्रक्चर. The structure similar in different organisms because they evolved in the similar environment rather than were inherited from recent common ancestor. Analogous structures कैसे structures होते हैं? जो structure होते हैं वो similar होते हैं in different organism because they evolved in the similar environment. चूँकि जो organisms एक similar कैरेक्टर को सिमिलर स्ट्रक्चर को अगर कैरी करते हैं बिकॉज इनका जो इन्वायरमेंट होता है ये सेम होता है, इस वजह से ये कॉमन स्ट्रक्चर को शेयर करते हैं रादर दैन वे आर इनहेरिटेड फ्रॉम रिसेंट कॉमन एंसेस्टर एंड दे यूजुअली सर्व द सेम और सिमिलर पर्पज. फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप ऑफ पोर्पोइजेस एंड शार्क. जो पोर्पोइजेस और शार्क हैं इनके ये दोनों कॉमन एंसेस्टर को शेयर नहीं करते बट फिर भी इनके पास सिमिलर कैरेक्टर है. वो कैरेक्टर क्या है? स्ट्रीम लाइन बॉडी है. अब अगर एनालॉगस स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर सिमिलर हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर वो किस वजह से हैं? बिकॉज ऑफ द सिमिलर इन्वायरमेंट. तो पोर्पोइजेस और शार्क दोनों का इन्वायरमेंट जो है ये एक्वेटिक है, इस वजह से इनकी जो बॉडी है ये स्ट्रीम लाइन बॉडी है. Then next is the connecting link. The organism having the structure of different group are called as connecting link. जो organisms के पास दो different group के structures present होते हैं इन्हें हम connecting link कहते हैं. Connecting link explain the path of evolution and these connecting links are first peripatus.
Peripatus bear nephridia-like annelids and trachea-like arthropods. Hence, peripatus is considered as living connecting link between annelids and arthropods. Peripatus जो होते हैं इनको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं इन बिटवीन एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड, बिकॉज जो पेरिपेटस होते हैं ये एनिलिड्स के कैरेक्टर को भी कैरी करते हैं और आर्थ्रोपोड के कैरेक्टर को भी कैरी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो एनिलिड्स का कैरेक्टर है नेफ्रिडिया, प्रेजेंस ऑफ नेफ्रिडिया, तो ये पेरिपेटस में भी प्रेजेंट होता है. नेफ्रिडिया क्या होता है? इट इज़ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन. एंड आर्थ्रोपोड्स का कैरेक्टर क्या है कि ये ट्रकिया को कंटेन करते हैं. ट्रकिया क्या होता है? इट इज़ द एयर ट्यूब. तो एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड ये दोनों ग्रुप के दोनों ग्रुप का जो कैरेक्टर है ये कॉमनली पेरिपेटस में प्रेजेंट है. इसीलिए पेरिपेटस जो है इसको कनेक्टिंग लिंक कंसिडर किया जाता है एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड के बीच की. द नेक्स्ट कनेक्टिंग लिंक इज द मोनोट्रीम. Monotremes lays egg like reptiles and contain mammary gland also. Hence, monotremes are considered as connecting link between reptiles and mammal. अब जो मोनोट्रीम्स है इनके पास कौन से कैरेक्टर हैं? इनके पास रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर है और मैमल्स के भी कैरेक्टर्स है. रेप्टाइल्स के कौन से कैरेक्टर हैं कि ये एग लेइंग करते हैं. मोनोट्रीम्स जो हैं ये एग लेइंग करते हैं, जो कि कैरेक्टर है रेप्टाइल्स का. एंड इनके पास क्या है? मैमरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है. मीन्स इनके पास मैमल का जो कैरेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, ये भी कैरेक्टर है. तो ये दोनों कैरेक्टर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, मोनोट्रीम के पास प्रेजेंट है. हेंस मोनोट्रीम्स आर कंसिडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स. देन फोर्थ इज द वेस्टिजियल ऑर्गन. Vestigial organ are rudimentary organ or parts of the body which are greatly reduced and are useless, but the same structure are known to be present in other relatives or ancestors in a fully developed form performing important function. Vestigial means होता है remnant. Vestigial organs जो होते हैं they are the rudimentary organs or the part of the body which are greatly reduced and are useless. जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं इनकी जो साइज़ होती है ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है और जनरली ये कैसे होते हैं? दे आर यूजलेस, बट द सेम स्ट्रक्चर आर नोन टू बी प्रेजेंट इन अदर रिलेटिव्स और एंसेस्टर इन अ फुल्ली डेवलप्ड फॉर्म परफॉर्मिंग इम्पॉर्टेंट फंक्शन. The presence of such vestigial organs are assumed as remnant of fully developed organs and which are gradually being lost since the function for which these organs were meant is no longer necessary. जो वेस्टिजियल ऑर्गन का प्रेजेंस है इसे देखते हुए क्या एज्यूम करते हैं कि जो रिमेनेंट्स प्रेजेंट है ये किसी वक्त में फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गन्स थे, बट जैसे जैसे इनका यूज़ कम होता गया और आज ये यूज़लेस हो गए हैं तो धीरे धीरे यूज़ ना होने की वजह से इनकी जो साइज़ है ये ग्रेटली रिड्यूस होती चली गई. इनका कोई फंक्शन नहीं है, इनका कोई यूज़ नहीं है, तो ये ऑर्गन की साइज़ जो है ये ग्रेटली रिड्यूस होते चली गई है. The example of such organ in man and other animals are: first, vermiform appendix in man. The structure of vermiform appendix of man is often a cause of disease in man. On the other hand, in other primates, this organ is considerably larger and help in the digestion of the coarse food. जो अपेंडिक्स प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर जनरली उसका वर्क क्या होता है? जो कोर्स फूड होती है इसके डाइजेशन में हेल्प करती है अपेंडिक्स. बट ह्यूमन के अंदर ये कैसी हो गई है? ये वेस्टिजियल है, मीन्स ये रिमेनेंट के तौर पर प्रेजेंट है ह्यूमन के अंदर. लेकिन ह्यूमन के जो रिलेटिव्स हैं, जो प्राइमेट्स हैं, इनमें ये जो ऑर्गन है, जो अपेंडिक्स है, ये कंसिडरेबली लार्ज है और ये क्या करती है? जो कोर्स फूड होता है इसकी डाइजेशन में हेल्प करती है. Therefore, the vermiform appendix in man is considered as the remnant of one's long appendix in the ancestor. The next vestigial organ is the external ear in man. The ear muscle or the external ear in man is another example of vestigial organ.
These muscles were useful in many mammals who move the external ear freely to detect the sound efficiently. But in man, this structure is still present or persist, although these have no real utility. जो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक्चुअली ये यूजलेस है, इसका कोई काम नहीं है हियरिंग में, है ना. बट क्या है कि कुछ मैमल्स जो हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है इट इज़ ऑल्सो द मैमल, कुछ मैमल्स के पास क्या है, ऐसे एक्सटर्नल ईयर्स जो हैं ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं जो कि साउंड को डिटेक्ट करते हैं इफ़िशियंटली. बट अब क्या है कि ह्यूमन भी जो है ये भी मैमल है, लेकिन इनमें ये क्या है, धीरे धीरे इनका काम नहीं होने की वजह से ये रिड्यूस होकर अभी भी क्या है, दे आर स्टिल प्रेजेंट और परसिस्ट, ऑल्दो दीज हैव नो रियल यूटिलिटी. Then third is the caudal vertebrae in man. Caudal means tail. Caudal means tail. Vestigial caudal vertebrae 3 to 5 in man are found, which are the remnant of a well-developed tail of many mammals. जनरली जो मैमल्स होते हैं इनके पास टेल होती है, जो कहाँ से अराइज होती है, काउडल वर्टिब्री से होती है ना. तो जो काउडल वर्टिब्री है, वेस्टिजियल काउडल वर्टिब्री है, 3 to 5 कॉलम होती है मैन के अंदर, जो लोवेस्ट पार्ट होता है वर्टिब्री का, ये प्रेजेंट होती है, जो क्या है, इट इज़ द रेमेनेंट ऑफ अ वेल डेवलप्ड टेल ऑफ मेनी मैमल. जो लास्ट फिगर में जो लास्ट पोजीशन दिख रहा है बेसल की तरफ, कॉक्सिक की तरफ, तो वह एक्चुअल क्या है, इट इज़ द वेस्टिजियल काउडल वर्टिब्री. Next is the skin fold in eye, wisdom teeth and body hair in man. Presence of a small reddish skin fold at inner angle of our eye is a remnant of a nictitating membrane in the eye of frog, rabbit and cats. जो आइज़ में हमारी स्मॉल रेडिश स्किन फोल्ड होता है इनर एंगल में आई की, एक्चुअली ये क्या होता है, इट इज़ द रेमेनेंट ऑफ नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन विच इज़ प्रेजेंट इन द फ्रॉग, रैबिट एंड कैट्स. एंड सिमिलरली अ प्रेजेंस ऑफ विजडम टीथ. व्हाट इज विजडम टीथ? द 4 teeth in the last teeth of the jaw is wisdom teeth, and wisdom teeth and the body hair in man are other similar example of vestigial organ. This is the last teeth is the wisdom teeth and the body hair. मीन्स पहले के टाइम पर क्या था कि जो इवोल्यूशन की थ्योरी के हिसाब से जो ह्यूमन बींग्स थे वो पहले फॉरेस्ट वगैरह में रहते थे, तो उस टाइम पर क्या था कि जो वेदर था उसको टॉलरेट करने के लिए जो स्किन पर हेयर्स थे ये बहुत ज़्यादा थे, इनॉर्मस थे. लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग जो है ये फायर को इसने डिस्कवर किया, देन इसने होम शेल्टर बनाए, घर में रहना शुरू किया, क्लोथ्स पहनने शुरू किए, तो इस हिसाब से क्या हुआ कि जब जो भी वेदर हो उसको रेगुलेट करने लगा अपने हिसाब से, तो बाद में क्या हुआ कि जो हेयर्स थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, रिड्यूस हो गए. देन नेक्स्ट, वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन सम अदर एनिमल्स. Vestigial organs were also available in many lower animals. Many animals which are living in caves where no light ever reaches show different degree of degradation of eye. Vestigial organs में क्या है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग में ही नहीं प्रेजेंट है, ये दूसरे लोअर एनिमल्स में भी प्रेजेंट है वेस्टिजियल ऑर्गन्स. कुछ एनिमल्स जो हैं जो कि क्योज में रहते हैं, क्योस में क्या होता है कि टोटली लाइट जो होती है ये एब्सेंट होता है, तो मुसलसल क्यो में रहने की वजह से चूँकि वहाँ पे टोटली डार्क एरिया है, आई का कोई यूज़ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वक्त होने के बाद में क्या होता है कि ऐसे एनिमल जो है वो डिग्री ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ आई शो करते हैं. देन द प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल पेल्विक गर्डल ड्यू टू लॉस ऑफ हाइंड लिम्ब इन शार्क्स एंड व्हेल्स. जो वेस्टिजियल पेल्विक गर्डल है ड्यू टू लॉस ऑफ हाइंड लिम्ब इन शार्क एंड व्हेल्स, ये भी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है. देन द वेस्टिजियल विंग इन द बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, ईमू एंड कीवी, ये भी क्या है, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन.
and the vestigial fibula in hind limb in the form of splint of bone in hoofed mammals like horse and deer are the also example of vestigial organ. In this, vestigial wings in ostrich, emu and kiwi, and the vestigial fibula in hind limb in the form of splint of bone in hoofed animal like horse and deer. Thank you.